Okay, let's start today's session. So in the last lecture, we discussed about the wildcard queries, and we will discuss these even today. So why we have started, because wildcard queries. Have you used, any one of you used wildcard queries in Google? आप में से किसी ने यूज किया गूगल में? No, sir. हाँ, तो बिकॉज गूगल डजेंट वांट यू टू यूज इट, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे व्हाई गूगल डजेंट वांट. हालांकि ऑप्शन होती है गूगल में, बट गूगल नेवर ओपनली टेल्स आपको. एक्सपर्ट ब्लॉग्स के थ्रू देखना पड़ता है कि कैसे लिखनी है. ऑप्शन है वहाँ पे, बट गूगल चाहता नहीं है. जैसे google.com/advanced करके अगर लिखोगे तो उनकी एडवांस सर्च खुल जाती है. सो पहले ये ऑप्शन 2011 तक मेन पेज पे लिखा होता था एडवांस सर्च, बट नाउ दे हैव रिमूव्ड. We will see in today's lecture. We will try to build our knowledge about that as well. Let's say you want to search this thing. You know that okay, there are three letters, uh, which you are aware that okay, these are three letter definite. But after that, you do not know the spelling. So you want to know all the words containing these three letters followed by anything, maybe nothing, or followed by one or two or many characters. So it is easy to deal with the binary trees because we can search in a range MON. So then alphabetically we know that between the next character O. So between that we can search all the words. So we can find all the words or all the documents containing in between that. In last lecture, we have seen that this is bit difficult to do because if we have a binary tree, which we have designed in a way which is dividing the your index based on starting of the characters, based on the way the word are written from the first character onwards. So then it won't be possible to deal with these suffixes very easily, and we may have to maintain additional B tree, so which is reciprocal of this B tree, which is going backwards. And then we can uh, from in that particular we will be searching NOM, so that is that B tree is created uh, in reverse. So in that we will be searching NOM to NOM. So we need two B trees. One is searching forward and another is searching backward. So then we can deal with the suffixes as well. Is it clear? ये क्लियर है सबको? तो यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में एंड किया था, तो इसका कोई आंसर बताएगा कैसे करना होगा? सपोज मैंने प्रोफिशिएंट सर्च करना था, बट मुझे प्रोफिशिएंट के स्पेलिंग नहीं आते, बट इतना पता है मुझे कि स्टार्ट तो PRO से होता है और एंड सेट से होता है. तो अभी तो गूगल आपको पता है कि गूगल आपके स्पेलिंग करेक्ट कर ही देता है. तो बट अगर सपोज अगर हम ऐसे सर्च करते तो हाउ डू वी डू? सर मेरे ख्याल से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस कि जो बी ट्री है उसमें हम प्रो स्टार डालेंगे तो इट विल जनरेट all the words with the prefix PRO. Then if we have developed another B tree with the suffix, so we can give a query of star CENT. Then it will develop all the words with the suffix CENT. After all that, we'll take an intersection with PRO and CENT so that Yes, yes. Very good, very good. So this is the way we need to do it. This is the way we will do it. So query processing. So we have to enumerate all the terms. So for all these queries, like wherever these things are there. So in all of these queries, like Nikhil said, so we have to first search for in a B tree, which is taking from the starting of the word. We have to start word SC star. So all those words SC star and till SF star and SC star A or SC star B. So SC star A to uh, SC star A to then SC star B. And similarly here,
even another B tree which is from the backside. Again, we have to go through all the postings. So to deal with all of these things, so we have to, and like again, this is the example, we don't like this thing. So we could look up for CO star from one B tree, star shell in another B tree, and then we do the intersection. Now, you will see that, okay, this is very expensive because we are doing so many things. So I will be looking for CO star, all the words in the first B tree, and then star TION in another B tree. So then I am taking intersection. So it is going to be very expensive. So our solution to deal with the wildcard queries were very popular till 2011. Even Google used it, but we will see that why it is not being used nowadays. So it is very expensive to deal with these queries. And then accuracy of results, because now you are increasing the number of words, so accuracy will decrease. So another solution which is proposed, rather than having a simple B tree, another solution which is proposed, which is called the permuterm index. So permuterm is this is the word which is created using two words, permutation of terms. So permuterm is the actually combination of two words, permutation and term. So this index is created to reduce this operation. Obviously, whenever in algorithm, whenever you are want to reduce the time taken, obviously you have to give trade-off with the space. So now we will see that what is a permuted term index and how it is created. Let's say you have a word hello. So in a normal index, we have one token and one word, and it is indexed only one time. But in permuterm index, so I will create a word hello dollar, then I will remove H and put it. So all the words which start with LO, so where ELLO comes, so they will be indexed under this LO dollar H. So whatever it is, so ELLO, all the words, whether it is hello, whether it is another word, so they will be indexed here. Hello will also be indexed here because it also contains hello. And then we remove E, LLO dollar HE. So this is the third token in the index. And then LO dollar HEL and then O dollar HEL. So from one word, this is indexed in these 5 tokens. So similarly, depending on the number of letters in the word, so it will be indexed in the multiple words. So hello is not only indexed under hello, but also in these tokens. We have created additional tokens. And dollar is a special symbol. So this special symbol dollar, in you can choose any word which is not frequently used. Here I am using dollar just to explain the concept. Otherwise, a special symbol is used, which is normally not in the text. So I am using dollar just to explain the things. Even when you are writing in the exam, also dollar would be easy for you to write. But actually, जब करते हैं तो एक बड़ा स्पेशल सिंबल यूज होता है जो वैसे हम लिखते नहीं, ठीक है? तो डॉलर अभी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. So जब भी क्वेरी आएगी, सपोज एक्स क्वेरी आती है, एक्स लेट्स एक्स इज हेलो. अगर एक्स हेलो है तो हम किस में देखेंगे? हेलो डॉलर में देखेंगे. वहां पे हेलो पहले से है एंड वी विल पिक इट अप. नाउ लेट्स से एक्स स्टार क्वेरी आती है. सो व्हेनेवर एक्स स्टार क्वेरी आती है, सपोज एच ई स्टार क्वेरी है, यानी एक्स का मतलब एच ई है. सो हम देखेंगे किसमें? डॉलर एच ई स्टार में. सो जहां पे डॉलर एच ई है उस वाले इंडेक्स में हम देखेंगे. सो वेयर एवर डॉलर एच ई इज देयर, वहां पे हम देखेंगे. स्टार एक्स आती है तो हम एक्स डॉलर स्टार वालों में देखेंगे. लेट्स से एक्स आपका एल एल ओ है एंड स्टार एल एल ओ है, यानी कि एक्स का मतलब एल एल ओ है. तो आप किस में देखोगे? एल एल ओ डॉलर स्टार में देखोगे. सो एल एल ओ डॉलर स्टार, एल एल ओ डॉलर, आगे कुछ भी हो, स्टार का मतलब कुछ भी हो. तो इस वाले इंडेक्स में देखेंगे. अगर कोई क्वेरी ऐसे लिख देता है कि स्टार ई एल स्टार, ऐसी क्वेरी आती है वाइल्ड कार्ड, देन वी लुक अप इन द एक्स डॉलर, यानी कि इसमें एक्स क्या? ई एल. सो ई एल स्टार में देखेंगे कि उन सारे वर्ड जहां पे ई एल आते हैं. अगर कोई क्वेरी ऐसे आती है एक्स स्टार वाई, सो ऑब्वियसली एक्स स्टार वाई हम कैसे देखेंगे? सपोज एच ई स्टार ओ आर है
तो ऐसे किसी ने क्वेरी लिखी है, तो हम ओ डॉलर एक्स का मतलब एच ई एंड स्टार, इसमें देखेंगे ओ डॉलर एच ई स्टार। सो जहां पे ओ डॉलर एच ई आ रहा है और उसके बाद स्टार का मतलब कुछ भी आए तो यानी कि इस वाले इंडेक्स में। So what we have done is, earlier whenever one word it has one entry in the B tree, but now from one word we have created multiple tokens, multiple entries we have created, and for each type of query we know that where to look it up. ये क्लियर है सबको? इसमें डाउट हो कुछ? ये आप सोल्व कर पाओगे कैसे करना है? सर एक बार रिविजिट कर लेते हैं। हाँ, ये भी मैं आप सोल्व कर देता हूँ, बिकॉज ऐसे ना होगी आपको बात। तो अब हमने क्या देखना है कि अब हम करके रहे हैं, जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे मैंने एग्जांपल हेलो के लिए, सो पहले क्या था, हेलो का एक ही इंडेक्स था, भी एक वर्ड है एक इंडेक्स है। बट अब क्या हो रहा है, हेलो के कोरस्पॉन्डिंगली मैंने ऐसे कई परमुटेशन बना ली इसकी। सो सारी पॉसिबल परमुटेशन मैंने बना ली। सो जितनी परमुटेशन बनती है हेलो से सारी बना के, अब यानी कि एक वर्ड नहीं रह गया, उसके 5 हो गए। अब उसका एडवांटेज क्या होगा, ऑब्वियसली मैं जितनी ज्यादा बनाऊंगा उतनी स्पेस भी नहीं लगती है, उतना मेरा इंडेक्स बड़ा होता जाएगा। अब उसका एडवांटेज क्या होगा, जब भी कोई क्वेरी आएगी, सपोज किसी ने एक्स क्वेरी की है, सो एक्स का मतलब कि उसने पूरा हेलो लिख दिया, सपोज पूरा हेलो लिखा, यानी कोई वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर नहीं है, तब तो मुझे हेलो डॉलर नॉर्मल में ही सर्च करना। तो नॉर्मल वर्ड सारे के सारे अब नॉर्मल वर्ड प्लस एक स्पेशल सिंबल के साथ होंगे, तब तो नॉर्मल क्वेरी तो मेरी चल ही रही है। बट जैसे भी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करते हैं, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक्स डॉलर लिखा है, एक्स स्टार लिखा है, स्टार एक्स लिखा है, स्टार एक्स स्टार लिखा है, एक्स स्टार वाई लिखा है, ऐसे कई तरीके हो सकते हैं। हर तरीके में नाउ वी हैव फाइंड आउट कि अगर ऐसा आता है तो क्या सर्च करना है, अगर ये आता है तो क्या सर्च करना है। ठीक है, तो अब हमने हर बना लिया। अब क्योंकि ये पहले से टोकन बने हुए हैं, इतना इंडेक्स बना हुआ है, तो जब भी कोई वर्ड ऐसे लिखेगा, स्टार एक्स लिखेगा, सपोज किसी ने स्टार एल एल ओ लिखा है, तो मुझे एल एल ओ डॉलर स्टार में जाके सर्च करना है। सो एल एल ओ डॉलर स्टार क्या है, ये वाला इंडेक्स। तो अब मुझे हर तरह के वाइल्ड कार्ड के लिए पहले से पता है कि किस इंडेक्स में जाके सर्च करना है। उस मोमेंट में मेरा टाइम नहीं वेस्ट हो रहा, उस मोमेंट में सर बी ट्री में मैं आई एम गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन ओनली। सो टाइम सेव हो जाएगा, स्पेस इंडेक्स को क्रिएट करने में बढ़ जाएगी। ये क्लियर है सबको? इसको सोल्व करें हम, एक्स स्टार वाई जेड, इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स, इसको ऐसे बना लो आप एक्स स्टार, और ये आपका वाई स्टार जेड, यानी कि ये टर्म एक मान लो इसको, ठीक है, लेट्स से अब एक्स स्टार वाई के बराबर होगी एक्स स्टार वाई, ये दिस इज एक्स, ठीक है, एक्स ये स्टार। सो ये टर्म क्या होगी, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक्स स्टार, और इसको मैंने ऐसे बना लिया वाई स्टार जेड, ठीक है। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें क्या करते हैं, वाई डॉलर एक्स स्टार लिखते हैं, यानी कि पीछे जो आ रहा है डॉलर एक्स स्टार, तो पीछे क्या आ रहा था, वाई स्टार जेड। सो वाई स्टार जेड पहले आ गया, ये टर्म पूरी की पूरी, डॉलर का साइन, एक्स आ गया और स्टार आ गया। अब वाई स्टार जेड को भी सोल्व करना, तो जैसे ये सोल्व किया, सो वाई स्टार जेड के बन जाएगा जेड डॉलर देन वाई स्टार, ये अलग बन जाएगा, ये टर्म अलग है, और डॉलर एक्स स्टार। तो अगर इतना बड़ा भी कोई देता है वाइल्ड कार्ड भी ऐसे मल्टीपल देता है, तब भी सोल्व हो सकता है। ये क्लियर है? यस सर। तो दिस इज कॉल्ड परमुटर्म इंडेक्स। अब हाउ मेनी ऑफ यू लाइक दिस सॉल्यूशन, आप यस नो में बता सकते हैं, आपको अच्छा लगा है सॉल्यूशन? नहीं। हाँ, सो बिकॉज बड़ा कम्बरसम सा लगा, ठीक है ना, एक हाँ जी। लगा कि हेलो को हमने स्पेस दे दी। एक जब भी आप रिसर्च में करोगे ना, यू विल फाइंड दैट दिस इज ए जनरल थिंग कि व्हेनेवर यू सी दैट कि 100 लोगों ने रिसर्च किया है, 99 लोगों के शायद सॉल्यूशन आपको पसंद नहीं आएंगे। इवन ऐसा भी हो सकता है किसी का पसंद ना आए आपको सॉल्यूशन, और यही रिसर्च का नेक्स्ट स्टेप होता है। व्हेन यू डू नॉट लाइक द सॉल्यूशन,
then you will say okay, I will come with a better solution. सो इसी इंक्विजिटिवनेस को यहीं पर ही रिसर्चर और आपके माइंडसेट में यही होना चाहिए। जब आप अभी अपना थीसिस भी स्टार्ट करोगे, थीसिस का पहला पॉइंट ये होता है कि मुझे किसी का सोल्यूशन पसंद नहीं आ रहा, सो आई एम गोइंग टू कम आउट विद अ बेटर सोल्यूशन। तो ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। जब भी एमई थीसिस करके बच्चा बाहर जाता है ना, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हर चीज पे क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, आई कैन डू बेटर। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको भी होना चाहिए। सो परम्यूटेटिव इंडेक्स solution to किसी ने someone who has given it, so it solves certain things, but obviously there are certain things comes to mind that we can do it better, or it is not a obviously it can save your time a bit, but again this may not be liked by many people, but ये कई जगह पे implemented भी है, ठीक है। तो ये उसी की एग्जांपल थी। सो अब whenever permutation query processing करनी, so we rotate query wildcard to the right, we use a B tree as it is, but problem क्या है कि एक तो आपका साइज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हेलो का ही आपने देखा था, हेलो में 5 मैंने क्रिएट कर दिए थे। सो एवरेज इंग्लिश वर्ड देखा जाए तो 4 लेटर के तो होते ही हैं, एवरेज की बात कर रहा हूँ, कई तो 10 लेटर के हैं, कई 4 लेटर के, 2 लेटर के। सो दिस इज जस्ट इंपेरिकल, ऐसा कोई एक्चुअल में ऐसा नहीं, बट यानी कि 4 गुना तो आपका साइज बढ़ ही जाएगा, 5 गुना भी बढ़ सकता है। दिस इज जस्ट इंपेरिकल, कि एक अंदाजे से कह रहे हैं। इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन मीन कि जस्ट अंदाजा लगाया, स्टैटिस्टिकल मीन कि 4 गुना तो आपका डिक्शनरी है, जो आपका इंडेक्स का साइज तो बढ़ ही जाएगा। और फिर टाइम हमने जो सेव किया था बी ट्री को लुकअप करने में, बट आपका जो बी प्लस ट्री है अगर मेमोरी में नहीं आएगा, इफ इट हमें बार बार सेकेंडरी मेमोरी से लेके आना पड़ेगा, तो वो भी टाइम लगेगा, जो इसमें हमने नहीं देखा था। दैट इज आल्सो प्रॉब्लम फॉर दिस। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। परम्यूटेटिव इंडेक्स जो वाला सोल्यूशन है, ये आपको ऑब्वियसली आपके माइंड में आपको पता होना चाहिए कि दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट वेरी पॉपुलर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं विच इज पॉपुलर। सो नेक्स्ट सोल्यूशन है जिसको एन ग्राम्स भी कहते हैं, बट अभी मैं स्टार्ट बाईग्राम या के ग्राम, पॉपुलर इसका नाम एन ग्राम्स है, ठीक है। तो इसके कई वर्जन्स हैं इस सॉल्यूशन के। वी विल डिस्कस वन वर्जन, देन आई विल टेल यू अबाउट अदर वर्जन। सो इसमें मैंने के ग्राम इसलिए लिखा क्योंकि बुक में भी आपको के ग्राम दिखेगा, बट जब आप रिसर्चर पेपर पढ़ोगे तो आपको एन ग्राम वर्ड ज्यादा पॉपुलर है लाइब्रेरीज में। बुक में आपके, क्योंकि अगर आपने बुक से साथ साथ रीड करना देन यू विल गेट के ग्राम। सो इसमें हम हाउ टू क्रिएट बाईग्राम्स, पहले हम उस पर आते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, अब आपके पास जितना भी टेक्स्ट है, यू आर नॉट कंसीडरिंग कि वर्ड है कि किस टाइप का है, आप सारे टेक्स्ट को बाईग्राम की तरफ लिखोगे। आपके लिए हर चीज बाईग्राम है। लेट्स से आपने बाईग्राम 2 बाईग्राम का मतलब कि 2 ग्राम में किया है, आपके लिए अब कोई भी इंग्लिश का टेक्स्ट है दैट इज ए बाईग्राम। अब कन्वर्ट कैसे करना है? एप्रल। सो हम पहला $A, फिर AP, फिर PR, फिर RI, फिर IL, फिर L के बाद स्पेस है, स्पेस के लिए स्पेशल सिंबल या डॉलर भी यूज कर सकते हो, या वर्ड खत्म हो गया वो एक स्पेशल सिंबल है। तो आपने देखा मैं डॉलर यूज कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में डॉलर भी यूज होता है, क्योंकि डॉलर तो पार्ट ऑफ टेक्स्ट भी हो सकता है, एक्चुअल स्पेशल सिंबल यूज होता है, ठीक है। जस्ट फॉर राइटिंग पर्पज आई एम यूजिंग डॉलर। फिर $I, फिर IS, S डॉलर। In this way you can see that whole text is now seen as a बाईग्राम्स। तो अब हमारे लिए कोई वर्ड की अहमियत नहीं रहेगी। अब हम जब इंडेक्स कर रहे हैं, बिकॉज हियर वी आर नॉट लुकिंग एट द मीनिंग, तो वी आर इंडेक्सिंग, हमें वो डॉक्यूमेंट चाहिए जहां वर्ड एग्जिस्ट करते हैं, ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप सोचोगे कि मीनिंग, सेमेंटिक्स, वो भी हम लेटर ऑन आएंगे, तो अभी हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं कि इसकी इंडेक्सिंग कैसे करें। तो अब हमारे लिए कोई एप्रल की इंडेक्स नहीं कर रहे, हमारे पास इतने इंडेक्स कर रहे हैं। $A की इंडेक्स लग गया, AP की लग गया, PR की लग गया, RI की लग गया। सो यू हैव ए बाईग्राम, यानी कि पूरे का पूरा जो भी इंग्लिश का टेक्स्ट है, यू आर कंसीडरिंग दैट एज ए 2 कैरेक्टर वाइज। तो स्टार्टिंग में भी स्पेशल कैरेक्टर है, वर्ड के लास्ट में स्पेशल कैरेक्टर है, एंड इन दिस वे यू आर लुकिंग एट द टेक्स्ट। सो अब आपके लिए अप्रैल का मीनिंग नहीं है। जब भी कोई अप्रैल सर्च करेगा, सो आपको पता है कि क्वेरी को भी ऐसे डिवाइड कर देंगे कि हमें $A
फिर डॉलर एपी, फिर पीआर, फिर आरआई, आईएल ऐसे सर्च कर लो। सो अब जो ये जो इंडेक्स है, जब ये सोल्यूशन आया था, सो दे सेड कि एक बी ट्री तो आपका वर्ड का बना ही हुआ है। सो दे आर नॉट सेइंग दैट कि एक बी प्लस ट्री तो आपने बनाया ही हुआ है, जिसमें अप्रैल आपका टोकन है, यानी वर्ड वाइज तो बना ही हुआ है। सो दे से दैट वी आर नॉट सेइंग कि उसको रिमूव करना है, वो तो एक टोकन है ही है। मेंटेन ए सेकंड, एक और इंडेक्स बनाओ। वो इंडेक्स वर्ड वाइज नहीं है, वो बाईग्राम वाइज है। ठीक है, अभी मैं बाईग्राम की एग्जांपल ले रहा हूँ, बट इट कुड बी ट्राईग्राम और इट कुड बी के ग्राम या एन ग्राम, यानी जितने मर्जी वर्ड्स का हो सकते हैं। और इसमें मैं करेक्टर वाइज लेके चल रहा हूँ। अभी मैं करेक्टर को एक यूनिट मान के चल रहा हूँ। काफी जगह पे वर्ड को भी यूनिट माना जाता है, वो भी मैं लेटर ऑन बताऊंगा कहाँ कहाँ माना जाता है। तो यानी कि इसके सोल्यूशन जब प्रपोज हुआ पीपल से कि एक बी प्लस ट्री वाला इंडेक्स तो बना के रखना है, उसमें कोई डिनाइल नहीं है कि वो तो होगा ही होगा, but maintain another index which is considering bigrams, dictionary terms, and whenever we have to match, we also match, look at the second index। यानी स्पेस भी बढ़ गई अब सेकंड इंडेक्स की बनाने की, और टाइम उसमें भी देखेंगे। आइडिया क्या है कि वाइल्ड कार्ड को भी हैंडल कर पाए, क्वेरीज का, यूजर का जो एक हम फैसिलिटी देना चाहते हैं वाइल्ड कार्ड कि यूजर अब बेटर क्वेरी कर पाए। तो उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए अब टाइम और स्पेस थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा। सो पीपल आर गुड एट कि ठीक है आप एक और बड़ा सर्वर लगा दो। सो जैसे अगर आप देखो गूगल के डाटा सेंटर में एक सिंगल बे में नॉर्मली 56,000 प्रोसेसर होते हैं, और गूगल का जो डाटा सेंटर्स हैं जो अलास्का में है, उसमें ऐसी 10,000 बे होती है। यू कैन सी दैट कि कितनी बड़ी कंप्यूटिंग उनके डाटा सेंटर में होती है। तो इस पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नाउ वी हैव ए सेकंड इन्वर्टेड इंडेक्स। सो यानी कि जब भी कोई भी क्वेरी आएगी, सो अब जैसे डॉलर एम, अब हमें सर्च करना है एम वाले लेटर, सो यानी कि बाईग्राम्स के वाले, तो हमें एम, जितने भी एम वाले होंगे वो सारे इसके अंदर दिखेंगे, जो भी एम से स्टार्ट होते हैं। एमओ वाले जितने भी होंगे, बिकॉज ये बाईग्राम स्पेशल इंडेक्स है, ये वर्ड वाले से दूसरा इंडेक्स है, यानी एमओ जहां भी आता है वो सारे इसमें होंगे। ओ एन जहां पे आता है, सो वो सारे इसके अंदर होंगे। सो इन इस वे से, सो अराउंड नहीं आएगी यहाँ पे, ओ एन वाले जितने भी होंगे वो सारे इसमें होंगे। सो इस तरह से जितने भी टू टू लेटर वाले जो होंगे वो हम निकाल सकते हैं सेकंड इंडेक्स से, अगर रिक्वायरमेंट होगी। अगर तो नॉर्मल पूरा वर्ड है, वाइल्ड कार्ड नहीं यूज हुआ, तब तो हम नॉर्मल इंडेक्स यूज करेंगे। बट इफ वाइल्ड कार्ड्स आर यूज्ड, देन वी स्टार्ट लुकिंग एट दिस बाईग्राम इंडेक्स। सो अब जब भी वाइल्ड कार्ड वाली क्वेरी आएगी, ओनली देन वी लुक एट दिस इंडेक्स। सो फर्स्ट वी लुक एट सारे वर्ड जो एम से स्टार्ट होते हैं, सारे वर्ड जो एमओ से स्टार्ट होते हैं, सारे वर्ड जो ओ एन से स्टार्ट होते हैं, अब उस वाले इंडेक्स से, एंड देन वी मैच, उनको हम मैच करेंगे, एंड देन ऑब्वियसली उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हम क्या निकालना चाहते हैं, एम ओ एन और उसके बाद वर्ड्स। सो इसमें मैंने एग्जांपल दिया कि ऐसा भी पॉसिबल है ये वाले वर्ड भी आ जाए, मून भी आ जाए, क्योंकि मून में भी एम आता है, मून में एम ओ भी आता है, और ओ एन इसका ये वाला आ जाएगा, तो ये फॉल्स केस आ जाएगा। सो दिस इज आल्सो लिमिटेशन विद दिस, यानी कि फॉल्स केस को हमें बाद में फिल्टर आउट करना पड़ेगा। पोस्ट यानी कि रिजल्ट निकालने के बाद भी काम करना पड़ेगा, पोस्ट फिल्टरिंग करनी पड़ेगी। एंड सो फाइनल जो टर्म्स होंगी वो हमें फाइनल देंगे, फाइनल हम आंसर करेंगे। सो इट इज फास्ट एंड स्पेस एफिशिएंट कंपेयर टू परमुटेबल। कंपेयर टू परमुटेबल लिखना जरूरी इसलिए क्योंकि नॉर्मल में तो एक ही इंडेक्स बन रहा था, इसमें दो इंडेक्स बन रहे हैं, एक जो बाईग्राम के इंडेक्स तो बन ही रहा है। अब इसमें नॉर्मल टर्म के केस में तो टाइम उतना ही लगेगा क्योंकि एक इंडेक्स है। ओनली जब वाइल्ड कार्ड क्वेरी आएगी तभी हम बाईग्राम वाला इंडेक्स देख के ये सारा काम करेंगे, बट हमारा टाइम और कहाँ लगेगा, फॉल्स केसेस को रिमूव करने में भी टाइम लगेगा। सो it is faster and space efficient just to the permutation term. So this is called the n-gram indexes.
आप n ग्राम या k ग्राम से कर सकते हैं। ये क्लियर है सबको? इसमें डाउट हो किसी को? इसकी लिमिटेशंस दिख रही है? वी आर नॉट आल्सो अगेन गोइंग टू से दैट कि दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। वो आपको दिख ही रहा है कि पोस्ट फिल्टरिंग फास्ट टर्म तो काफी आ जाएंगे। ये मैंने एग्जांपल दी, बट ऐसे आप कई एग्जांपल्स बना सकते हो। नाउ प्रोसेसिंग वाइल्ड कार्ड क्वेरीज। जब भी वाइल्ड कार्ड क्वेरीज आएगी, आपको पता है कि बुलियन क्वेरीज को भी आपको प्रोसेस करना पड़ेगा एंड इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। सो नाउ सपोज गूगल का मेन बॉक्स ऐसा होता है, गूगल में मेन सर्च इंजन में लिखा होता है टाइप योर सर्च टर्म यूज स्टार इफ यू नीड टू, फॉर एग्जांपल एलेक्स स्टार विल मैच अलेक्जेंडर। अगर ऐसा लिखा होता तो आप कभी भी पूरी टर्म लिखते ही नहीं हो, आप हमेशा पाइट स्टार लिखते, प्रोग स्टार लिखते। तो बिकॉज इफ यू इनकरेज लेजीनेस पीपल विल रिस्पॉन्ड। सो अगर आप गूगल ऐसे कहता कि आप स्टार लिख दिया करो तो कोई भी पूरी टर्म लिखते ही ना, लोगों को लगता है पूरा लिखने की जरूरत क्या है, थोड़ा सा आधी 3 कैरेक्टर लिखो, स्टार लिखो, सर्च तो हो ही जाता है। बट यू कैन वेल इमेजिन कि जब भी वाइल्ड कार्ड करेंगे, एक तो एफिशिएंसी नहीं आएगी, क्योंकि काफी टर्म मैच कर सकती है, एफिशिएंसी ऑब्वियसली विल रिड्यूस, और ऊपर से गूगल का काम तो काफी बढ़ गया, गूगल को तो टाइम ज्यादा लगाना पड़ रहा है और पूरी दुनिया शुरू हो जाएगी फिर तो ऐसे। So that's why even though there are wildcards possible in the Google, but they never promote it. They never अब उन्होंने फ्रंट वाले से एडवांस सर्च हटा ही दिया, आपको एडवांस में जाने के लिए स्पेशल जाना पड़ता है। उन्होंने अपने ब्लॉग में भी नहीं लिखा हुआ है, गूगल ने थर्ड पार्टी के ब्लॉग्स में लिखा होता है कि कैसे जाना कि गूगल के एडवांस सर्च में। सो google.com/advanced करके जाओगे तब वो खुलेगा। और बट अभी जब आप सर्च करते हो गूगल में, बट यू कैन सी दैट के ऊपर कुछ आइकन्स आ जाते हैं कि बिटवीन इस टाइम में देखना है, जहाँ पर्टिकुलर इमेजेस करते हो तो काफी कुछ आ जाता है कि कौन से साइज की देखनी है। तो गूगल वांट्स यू टू डू ए सर्च द वे दे हैव क्रिएटेड इंडेक्सेस, दे डू नॉट वांट यू टू यूज द वाइल्ड कार्ड क्वेरीज। सो जब भी वाइल्ड कार्ड क्वेरीज आएंगी तो ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे। ये क्लियर है सबको? इसमें डाउट हो किसी को कुछ? सो अब एक चीज तो हमने सोल्व कर ली, वाइल्ड कार्ड क्वेरीज भी, हाँ इनको डील करना मुश्किल है, सर्च इंजन नहीं करते। अब नेक्स्ट चीज है स्पेलिंग करेक्शन। यू विल से कि ओके ठीक है वाइल्ड कार्ड क्वेरीज आई एम नॉट यूजिंग, बट आई डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ एवरीथिंग। सो नाउ यू नो दैट की स्पेल करेक्शन तो गूगल में बड़ा अच्छा है। सो वी विल सी दैट कि उन्होंने कैसे इंप्लीमेंट किया और कैसे करना चाहिए। So two principal uses correcting documents being indexed। जब इंडेक्सिंग के टाइम पे भी स्पेल करेक्शन चाहिए। सपोज मैंने मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर ही स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो अगर गूगल उसी स्पेलिंग मिस्टेक के साथ जाएगा तो अब वो कितनी जल्दी वहां तक पहुंचता है। एंड देन करेक्टिंग यूजर क्वेरीज टू रिट्रीव, यानी कि एक तो इंडेक्सिंग के टाइम पे भी स्पेलिंग करेक्शन करनी है, और दूसरा यूजर हमेशा स्पेलिंग ठीक नहीं लिख सकते। सो यूजर को भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, समटाइम टाइपोस हैं, कई बार यूजर को नहीं पता होता, बट स्टिल वी वुड लाइक टू गिव देम द राइट आंसर्स, हमें तो राइट आंसर देंगे। सो दो जगह पे स्पेलिंग करेक्शन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ सर्च इंजन डू नॉट प्रोवाइड दिस, सो दे मे इंडेक्स इट रॉन्ग। अब इसमें कई इश्यूज आते हैं, जैसे नॉर्मली इफ यू लुक एट माय रिसर्च पेपर्स, काफी टाइम मैं रिसर्च पेपर्स में नए वर्ड्स क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने एक पेपर था, मैंने ये वर्ड क्रिएट किया रोड स्फिग्मो। अभी आप गूगल पे सर्च करना कि रोड स्फिग्मो अलोंग विद माय नेम, तो रिसर्च पेपर कौन सा आता है। सो नाउ व्हाई दीज वर्ड्स आर क्रिएटेड, जब एज ए रिसर्चर आप ही क्रिएट कर सकते हो। आपने देखा होगा कई पेपर पढ़ोगे तो पीपल क्रिएट दीज वर्ड्स, खास करके डीप लर्निंग में तो काफी कुछ करते हैं। अब व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस वर्ड, एक रिसर्चर्स को होता है कि आई हैव क्रिएटेड न्यू वर्ड्स। अब इसका मीनिंग क्या था, जो मेरी रिसर्च थी, वी वर कैलकुलेटिंग द ट्रैफिक कंजेशन ऑन द रोड्स। सो ट्रैफिक कंजेशन जैसे बढ़ जाती है, रोड के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। सो रोड के ऊपर प्रेशर
प्रेशर हम नॉर्मल अपना बीपी कैसे मेजर करते हैं, उस डिवाइस का नाम होता है बीपी के वाले डिवाइस का नाम पता है आपको क्या होता है? बीपी मेजरमेंट वाली मशीन को क्या कहते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं इसको, ठीक है, जो जिससे बीपी मेजर करते हैं। तो उसको यूज करके हमने एक वर्ड बना दिया रोड स्फिग्मो विच टेल्स द प्रेशर ऑफ द रोड्स। ऐसे आप देखोगे हर पेपर में, जो अच्छे पेपर है काफी लोगों ने किए होते हैं, रिसर्चर्स ट्राई टू क्रिएट न्यू वर्ड्स। तो ऑब्वियसली एक बार तो गूगल को लगा होगा जब इंडेक्स की जो मेरा रिसर्च पेपर है दैट इज एक्चुअली स्पेलिंग एरर, but slowly then they get to know that this is a word which is not in the dictionary but is being created। जैसे अभी आपने परमोटर्म भी देखा था, वो भी किसी ने वर्ड क्रिएट किया है। ये बाईग्राम्स, ये भी वर्ड क्रिएटेड है, these were not earlier in the dictionary, so these words are created by the research community whenever they do the research। जब भी आप पढ़ोगे आपने कई वर्ड देखोगे, डीप नेट, इरिस नेट, सो ऐसे कई वर्ड क्रिएट किए जाते हैं। कई बार तो मूवी के नाम से क्रिएट किया जाता है, इंसेप्शन नेट, ऐसे वर्ड्स बीइंग क्रिएटेड एंड वो एक रिसर्चर के लिए एज बिकॉज आप भी थीसिस करोगे, रिसर्चर के लिए जब भी ऐसे वर्ड हम क्रिएट करते हैं जैसे तो एक सेटिस्फेक्शन भी होती है जब पॉपुलर हो जाए, तो वो भी एक सेटिस्फेक्शन होती है। बट नाउ इंडेक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अब इंडेक्सिंग में रोड स्पिग्मो नोबडी यूज इट, तो इसके अंदर अगर गूगल इंडेक्स करेंगे तो ओनली माय डॉक्यूमेंट वुड बी देयर, बट एट सर्टेन इंस्टेंट गूगल गेट कि शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो उनको डॉक्यूमेंट में भी करेक्शन लगा होगा करनी है, बट later on when they see that okay this is a new word created, it has to be indexed separately from the other words and then correcting user queries to treat them, यूजर की क्वेरी में भी हमें ठीक करना है। सो अब इसमें दो मेन फ्लेवर्स हैं, आइसोलेटेड वर्ड, चेक ईच वर्ड ऑन इट्स ओन फॉर मिस स्पेलिंग। कई बार टाइपोस जो है वो नहीं कैच होंगे, सो जैसे काफी लोग फ्रॉम जल्दी टाइप लिखते हैं तो फॉर्म लिख देते हैं, तो ये तो नहीं चेक हो पाएगा कि क्योंकि ये दोनों इंग्लिश के वर्ड हैं तो टाइपो नहीं मैच हो पाते। जैसे आई फ्लू फॉर्म, यहाँ फ्रॉम आना था बट टाइपो के कारण गलती से फॉर्म लिखा गया, हीथ्रो टू नेरिटम। तो ऐसे कई क्वेरी में वर्ड को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, उसके जब तक हमें मीनिंग नहीं पता तब तक हम ऐसे वर्ड को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब ये जो करेक्शन इंडेक्सिंग के टाइम पे, यानी जब हम इंडेक्स बना रहे हैं, अगर तब नहीं की मैंने तो क्वेरी के टाइम पे अगर मैंने करूंगा तो वो मैच नहीं होगा। सो ऐसे कई वर्ड होते हैं जो इंडेक्सिंग के टाइम पे अगर करेक्शन नहीं हुई तो जब उसको करेंगे मैचिंग करेंगे तब करेक्शन करनी मुश्किल हो जाती है। जैसे आप पंजाब वर्ड है, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसे लिखा जाता है और बाकी जगह पे पंजाब को ये पॉपुलर है, ठीक है। तो आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी ऐसे क्यों लिखती है? चलो एनीवे किसी और टाइम डिस्कस करेंगे कि वाई पंजाब यूनिवर्सिटी राइट दिस वे। सो आप गूगल में सर्च करना पंजाब यूनिवर्सिटी और चेक करो कि क्या आता है ये कीवर्ड, एंड देन यू चेक पंजाब माइनस यूनिवर्सिटी, ये इकट्ठा लिखना है माइनस साइन यूनिवर्सिटी का माइनस गूगल में वाइल्ड का है कि एक लॉजिकल फैक्टर है, लॉजिकल सिंबल है, जिसका मतलब कि ये वाले आए पंजाब बट यूनिवर्सिटी ना आए, एंड चेक द रिजल्ट्स ये क्या आते हैं। सर वो पाकिस्तान वाला है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी आ जाती है उसमें? हाँ हाँ, तो एक्चुअली पंजाब यूनिवर्सिटी एक्चुअली अर्लियर इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1882, सो पहले पंजाब में थी, लाहौर में थी, तो अभी भी है वहाँ पे। ओनली जब आफ्टर पार्टीशन वन पार्ट इज शिफ्टेड टू इंडिया, बट उनकी अपनी यूनिवर्सिटी पंजाब कहते हैं उसको, वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। सो दैट्स व्हाई व्हेन इट केम देन दे पिक अप दीस स्पेलिंग्स, और जब पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ है तब स्टेट के फाइनल स्पेलिंग ये वाले आए, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में उससे पहले मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में मल्टीपल स्पेलिंग्स चलते थे, बट पंजाब यूनिवर्सिटी बिकॉज
यूनिवर्सिटीज की हिस्ट्री होती है। अब जैसे आईटी मद्रास है, मद्रास का नाम चेन्नई कर देंगे तो वहाँ आईटी का उनका नाम आईटी चेन्नई नहीं कर देंगे, इंस्टीट्यूट का नाम वही रहता है। तो आईटी बॉम्बे है तो मुंबई हो गया, बट इंस्टीट्यूट आईटी मुंबई नहीं होगा। तो इंस्टीट्यूट की लेगेसी होती है, इंस्टीट्यूट अपना नाम ऐसे इजीली चेंज नहीं करते। तो आप ये चेक करना, इससे में क्या चेक होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट में पंजाब आता है बट यूनिवर्सिटी नहीं आता। सो स्पेलिंग करेक्शन इज वेरी ट्रिवियल थिंग ऑन द बोथ साइड। सर्च इंजन को भी दिक्कत होती है टू डील विद द स्पेलिंग्स, एंड यूजर की क्वेरीज में भी दिक्कत होती है। गूगल में आपको पता है जब आप स्पेलिंग मिस स्पेल करते हो तो गूगल क्या करता है, क्या लिखा था वहां पे? ये लिखा था ना, डिड यू मीन? देखा आपने सबने ऐसे वर्ड लिखा था, जब आप स्पेलिंग गलत करते हैं ना तो वो लिखा जाता है, डिड यू मीन दिस, ऊपर लिखा जाता है। यस सर। हाँ, तो गूगल, अब गूगल का करने का तरीका लग गया। गूगल देखते हैं कि भी अच्छे रिजल्ट, अच्छे इंडेक्स है तो स्पेलिंग ठीक होंगे। अगर अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे तब वो देखता है कि किसी और में आ रहे हैं कि, एंड वो अच्छा रिजल्ट हो सकता है, देन इट गिव्स डिड यू मीन। सो गूगल क्वेरी में इमीडिएटली आंसर, पहले करेक्शन नहीं करता, पहले वो सर्च ही करता है, उसके बाद वो ऑप्शन देता है कि शायद स्पेलिंग गलत होगी। सो अब हमें डॉक्यूमेंट करेक्शन काफी बार करनी पड़ती है, या तो काफी डॉक्यूमेंट आपको पता है कि स्कैन होती है, ओसीआर होती है। सो ऑप्टिकल फैक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर, ये पहले टर्म हम काफी यूज करते थे। अब क्योंकि सिंपल ऑप्टिकल फैक्टर रिकॉग्निशन एक तरीके से नहीं होती, कई तरीके से होती है, तो ऑप्टिकल वे से नहीं होती, इसलिए ये टर्म अब थोड़ी आउटडेटेड हो गई है। अब स्कैन वर्ड यूज करते हैं क्योंकि सिंपल इमेज से हम निकाल देते हैं। तो ये भी एक रीजन होता है करेक्शन एल्गोरिथम सर, यानी कि इंडेक्सिंग करने से पहले हम करते हैं। जैसे आर एन एक्चुअली एम हो सकता है, या एम आर एन हो सकता है। इफ कई बार आपने देखा होगा, अगर आपने कभी भी स्कैन किया होगा पुराने वे से, तो ऐसे एरर्स काफी आते हैं। nowadays these errors comes less because nowadays scan images में हम काफी context sensitive algorithm भी चलते हैं, and we can use the domain specific knowledge to improve all of these things. वेब पेजेस में भी पता है आपको कि काफी टाइपोस हो सकते हैं, काफी मिस स्पेलिंग हो सकते हैं। सो ओवरऑल डॉक्यूमेंट करेक्शन करना तो एक टास्क रहेगा। बट जो ह्यूमन क्वेरीज है, जो यूजर की क्वेरी, यूजर को तो लगेगा कि मुझे तो स्पेलिंग नहीं आती है ना, हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू नो द स्पेलिंग। और कई बार यूजर तो सर्च इसलिए करते हैं कि स्पेलिंग देखने के लिए सर्च करते हैं। काफी बार तो मीनिंग देखना, नया वर्ड आया, वी सर्च जस्ट टू लुक एट द स्पेलिंग, सो हाउ टू नो कि मुझे पहले से स्पेलिंग बताओ। सो दैट्स व्हाई स्पेलिंग करेक्शन इज ए वेरी ट्रिवियल थिंग। तो अब हम कल क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो मंडे को होगा, वी विल सी दैट कि हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। तो इसको साथ में हम एक और एल्गोरिथम व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, व्हिच इज कॉल्ड द साउंडेक्स एल्गोरिथम, वो भी करेंगे। क्योंकि इसमें मैं नॉर्मल एग्जांपल दूंगा आपको, जलंधर वाली, जलंधर के क्या स्पेलिंग है, तो अब हर किसी को अलग स्पेलिंग दिखती है जलंधर के। अभी भी मैं जो लिखूंगा आपको लगेगा कि शायद आपके जो आप लिखते हो वो आपके अलग हो सकती है। तो so we will see in the next lecture, हम proper way से इस पे डिस्कशन करेंगे। Any doubt?